Dear students, today we are going to start Maths Part 1, Chapter 1, Angle and its Measurement, Exercise 1.1. See question number 12. One angle of a quadrilateral has measure 2 pi upon 5 radian and the measures of other three angles are in the ratio 2:3:4. Find their measures in degree and radians. That is, one angle of a quadrilateral is given 2 pi upon 5 radian and the remaining three angles are in the ratio 2:3:4. We have to find their measurements in degrees as well as in radians. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? For the solution, let ABCD be a quadrilateral. See the figure also. ABCD. Let ABCD be a quadrilateral. After that, let angle A is 2 pi upon 5 radian, which is already given in the question. So consider it is angle A. Angle A equals 2 pi upon 5 radian. So therefore, angle A equals 2 pi upon 5 multiplied by 180 upon pi, because 1 radian equal to 180 upon pi degrees. So we should convert 2 pi upon 5 into degrees by multiplying 180 upon pi. See once again. Therefore, angle A equals 2 pi upon 5 multiplied by 180 upon pi. So here pi and pi get cancelled, or 180 upon 5 becomes 36 and 36 into 2 becomes 72 degree. Means angle A equal to 2 pi upon 5 radian equals 72 degree. हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद हमें कितना मिला? 72 डिग्री, राइट? आफ्टर दैट रिमेनिंग थ्री एंगल्स पर फोकस करते हैं कि रिमेनिंग थ्री एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3:4. दीज आर थ्री ratios for the remaining three angles. So let x be the common multiple of remaining three angles. क्योंकि हम लोग सिर्फ remaining three angle का ही common multiple x यूज करेंगे, because angle A is already given in radian and it is converted in degrees, we get 72 degree. तो एंगल A को यहाँ पर लिख लेते हैं, this is 72 degree. अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि ये 72 डिग्री आने के बाद और एक कॉमन मल्टीपल लेने के बाद हमें क्या करना है. तो द रेशियोज आर 2:3:4. देयरफॉर एंगल B इक्वल टू 2x, एंगल C इक्वल टू 3x एंड एंगल D इक्वल टू 4x, या और किसी दूसरे ऑर्डर में भी हम ले सकते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. तो B इक्वल टू 2x, C इक्वल टू 3x एंड D इक्वल टू 4x, लेकिन अल्फ़ाबेटिकली ले लेंगे और इनका रेशियोज भी कॉन्सिक्यूटिव हो जाएगा, 2x, 3x एंड 4x रिस्पेक्टिवली. तो एंगल B एंड एंगल C, एंगल D आर एंगल B इक्वल टू 2x, एंगल C इक्वल टू 3x एंड एंगल D इक्वल टू 4x. नाउ यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल का सिंबल है. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज व्हाट? Angle A plus angle B plus angle C plus angle D equal to 360 degree. Means sum of all four angles of a quadrilateral is 360 degree. Now we should substitute the values of angle A, B, C and D respectively, which are mentioned above. तो सबसे पहले एंगल A equal to 72 degree. Here we write angle B equal to 2x from here, angle C equal to 3x from here and angle D equal to 4x from here, equals 360 degree. Now adding these like terms, so 2x plus 3x plus 4x
becomes 9x equals 360 minus 72 degree. So 360 minus 72 becomes 288 degree. Therefore, x equals 288 upon 9. Therefore, x equals 288 upon 9. अब इसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं. 9 3 जा 27 and 9 2 जा 18. तो x equals 288 upon 9 equals 32 डिग्री. सो वैल्यू ऑफ x मीन जो हमने कॉमन मल्टीपल लिया था वैल्यू ऑफ x, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 32 डिग्री. नाउ कैलकुलेट ईच एंगल सेपरेटली इन डिग्रीज एज वेल एज इन रेडियंस. तो देखो हमने सबसे पहले एंगल ए को, ये रेडियन में ऑलरेडी गिवन था और ए को हमने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया है. तो ए के लिए अब कोई यहाँ पर बाउंडेशन नहीं है कि उसको फिर से लिखना है या नहीं लिखना है, क्योंकि हम लोगों ने a इक्वल टू 2π/5 रेडियन ऑलरेडी गिवन एंड एंगल a इक्वल टू 72 डिग्री ऑलरेडी कन्वर्टेड. नाउ एंगल b इक्वल टू 2x. तो वैल्यू ऑफ x substituting here we get angle b equal to 2 into 32 degree equals 64 डिग्री. क्योंकि हमें दोनों में फाइंड करना है इन डिग्रीज एज वेल एज इन रेडियंस. So 64 degree equals 64 multiplied by pi upon 180 radian. When we multiply by pi upon 180, angle converted in radian. From degree to radian. Convert करने के लिए pi upon 180 से multiply. And after simplification, इसको हम लोग क्या करते हैं 4 से डिवाइड कर देंगे. इसको भी 4 से डिवाइड और इसको भी 4 से डिवाइड. तो after simplification we get 16 pi upon 45 radian. Means angle B equal to 64 degree equals 16 pi upon 45 radian. Clear? Now see angle C. Angle C equal to 3x. 3 into 32 equals 96 degree. Now convert it in radian by multiplying pi upon 180. So it is equal to 96 into pi upon 180. After simplification इसको हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे. 12 8 जा 96 and 12 15 जा 180. So this is equal to 8 pi upon 15 radian. So see this angle C equal to 96 degree and 8 pi upon 15 radian. तो दोनों साथ में कन्वर्ट करते हुए चल रहे हैं जिससे कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा और बहुत ही अच्छे से क्लियर करते जाएंगे. सी एंगल डी. एंगल डी इक्वल टू 4x. तो इट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 32 इक्वल्स 128 डिग्री इक्वल 128 मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180 रेडियन. So after simplification we get it is equal to 32 pi upon 45 रेडियन. तो ये हमें एंगल बी सी डी ये रेडियंस में मिल गए और एंगल बी सी डी देखो डिग्रीज में यहाँ पर मिल गया और एंगल ए ऑलरेडी यहाँ पर हमें डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है. तो आवर आंसर्स आर ए इन डिग्रीज एंड रेडियन. ए ऑलरेडी गिवन है 2 पाई अपॉन 5 एंड 72 डिग्री और बी सी डी के लिए यहाँ पर लिखा है. तो अगर स्टूडेंट चाहते हैं तो इनके आंसर वापस लिख सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो फिर से लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड सो यू कैन राइट आंसर वंस अगेन फॉर द एंगल्स ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली इन डिग्रीज एज वेल एज इन रेडियंस. तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो चलो नाउ सी क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन 13 फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन. फर्स्ट वन, सेकंड हेक्सागन एंड थर्ड वन सेप्टागन and fourth one octagon. So there are 4 polygons are given.
अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इनके इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स कितने हैं और उनको डिग्री एंड रेडियन दोनों में कन्वर्ट करके लिखना है। तो सबसे पहले मैं पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन एंड ऑक्टागन की मीनिंग बता दूं। देखो, पेंटागन मीन्स, और यहाँ पर दूसरी चीज़ ये भी लिखा हुआ है कि रेगुलर पेंटागन का मीनिंग होता है ऑल द साइड्स ऑफ अ पेंटागन और कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि हम लोग इरेगुलर साइड्स को छोटा बड़ा भी बना सकते हैं, तो उसमें ये फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं होगा। जब ये रेगुलर होगा तो उनके एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाएंगे और इक्वल रहेंगे सभी। तो फॉर रेगुलर मीन्स ऑल द रेगुलर पेंटागन ऑल द साइड्स आर इक्वल। रेगुलर हेक्सागन, तो पेंटागन की मीनिंग क्या है? 5 साइडेड, और हेक्सागन 6 साइडेड, और सेप्टागन 7 साइडेड एंड ऑक्टागन 8 साइडेड। इस तरह से नोनागन, डेकागन, डोडेकागन एटसेट्रा पूछते रहते हैं, तो जितना आएगा उतनी उसकी साइड्स अज्यूम करनी है। फिर से एक बार देख लीजिए, पेंटागन 5, हेक्सागन 6, सेप्टागन 7, ऑक्टागन 8। ये हमारे पास रेगुलर पॉलीगन्स हैं जिसको हमें सॉल्व करना है और बताना है कि इनके एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स इन डिग्रीज एंड रेडियंस में कितने हैं, हाउ मच डिग्रीज एंड हाउ मच रेडियंस। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन के लिए पहले। तो फर्स्ट वन के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं और इसको देखते हैं कि कितना होगा। फर्स्ट वन, पेंटागन। तो पेंटागन मीन्स इट हैज 5 sides, that is n equal to 5. Here n is number of sides, n equal to 5. अब हम देखते हैं कि इसका एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला क्या है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, exterior angle of a regular polygon equals 360 upon n, where n is number of sides. ये हो गया जनरल फॉर्मूला फॉर ऑल रेगुलर पॉलीगन्स। अगर हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करनी है तो ये एंगल से हमें एक्सटीरियर एंगल मिलता जाएगा। तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स 360 अपॉन n, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा। अब देखो, अपना पेंटागन है, इट हैज़ 5 साइड्स, तो n इक्वल टू 5 है, तो हम n की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ। तो दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 5 इक्वल्स 72 डिग्री। तो पेंटागन है, इसका एक्सटीरियर एंगल हमें मिल गया कितना, 72 डिग्री। अब एक्सटीरियर एंगल अगर 72 है तो हम लोग इसको पहले क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 72 डिग्री इक्वल्स, फॉर द रेडियन कन्वर्जन, मल्टीप्लाइड बाई पाई अपॉन 180। तो दिस इज इक्वल टू 72 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, अब इसको हम क्या करते हैं, 36 टू जा 72, 36 5 जा 180, कट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 5 रेडियन, मीन्स एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री इक्वल्स 2 पाई अपॉन 5 रेडियन। ये कंप्लीट हो गया एक्सटीरियर के लिए। अब हमें क्या करना है, देखो इंटीरियर एंगल भी फाइंड करना है इसका। तो इंटीरियर एंगल इक्वल 180 माइनस 72। ये एक्सटीरियर एंगल है, मीन्स 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल, तो हमें इंटीरियर एंगल मिलेगा। तो इंटीरियर एंगल इक्वल्स 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री इक्वल्स 108 डिग्री। 108 डिग्री, now we have to convert it also in radian। तो 108 मल्टीप्लाइड बाई पाई अपॉन 180, और इसको भी 36 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 जा और यहाँ पर 5 जा। तो दिस इज इक्वल टू 3 पाई अपॉन 5 रेडियन, मीन्स इंटीरियर एंगल इक्वल्स 108 डिग्री इक्वल्स 108 इंटू पाई अपॉन 180। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 3 पाई अपॉन 5 रेडियन। ये हो गया कंप्लीट फर्स्ट वन। तो पेंटागन के लिए हमारे पास एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री एंड रेडियन कन्वर्जन 2 पाई अपॉन 5 एंड इंटीरियर एंगल 180 माइनस 72
108 and radian conversion 3 pi upon 5 radian. This is first one. Now we should take second, hexagon, and then septagon, and then octagon. Now see hexagon second part. Its second part is second hexagon. It has 6 sides, that is n equal to 6. Exterior angle of a regular polygon equal to 360 upon n, where n is number of sides. So substituting the value of n, 360 upon 6 equal to 60 degree. How much? 60 degree. अब 60 डिग्री को हम लोग कन्वर्ट करेंगे 60 इंटू पाई अपॉन 180 इक्वल्स पाई अपॉन 3 रेडियन. ये मिल गया रेडियन में कन्वर्जन. एंड इंटीरियर एंगल इक्वल 180 माइनस 60 120 डिग्री. 120 इंटू पाई अपॉन 180. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 2 पाई अपॉन 3 रेडियन. तो ये हेक्सागन के लिए बहुत ही सिंपल मेथड है. यहाँ पर 360 अपॉन 6 60 डिग्री और कन्वर्ट करेंगे रेडियन में पाई अपॉन 3 और 120 डिग्री इंटीरियर और इसका रेडियन कन्वर्जन 2 पाई अपॉन 3 रेडियन. नाउ सी सेप्टागन. इट हैज 7 साइड्स, इसलिए मैंने देखो यहाँ पर से एक्सप्लेन करके लिख दिया है. इट हैज 7 साइडेड फिगर. इट हैज 7 साइड्स दैट इज एन इक्वल टू 7. एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 अपॉन n. दिस इज फार्मूला वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स. अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 7. तो दिस इज इक्वल टू 360 अपॉन 7 डिग्री. तो इट इज इक्वल टू 51.43 डिग्रीज. इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं सिंपली. 360 अपॉन 7 डिग्री. तो 360 अपॉन 7 को डिवाइड करोगे 51.43 डिग्रीज मिल जाएगा. तो पॉइंट में भी लिख सकते हैं और फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं. बोथ आर करेक्ट. Now we have to convert it into radian. तो 360 अपॉन 7 फिर से यही लेते हैं. डेसिमल पॉइंट को नहीं लेना है क्योंकि डेसिमल पॉइंट में कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा. तो 360 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाई पाई अपॉन 180. हियर 180 2 जा ये कट हो गया 180 से डायरेक्ट. तो वी गेट 2 पाई अपॉन 7 रेडियन. देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल is 51.43 degree and 2 pi upon 7 radian. तो 51.43 डिग्री और 2 pi upon 7 रेडियन दोनों एक ही हैं, लेकिन ये डिग्री में है और ये रेडियन में है. हमें दोनों वैल्यूज शो करनी है अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन. तो यहाँ पर हमें वैल्यूज दोनों लिखनी है और दोनों वैल्यूज डिग्रीज एज वेल एज इन रेडियन में लिख करके कंप्लीट कर लेना. अब इसके बाद हम लोग आते हैं इंटीरियर एंगल पर. अब इसका इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करते हैं. इंटीरियर एंगल इक्वल्स 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल. तो 180 माइनस 51.43 डिग्री. दिस इज इक्वल टू 128.57 डिग्री. ये सब ट्रैक कर दिया. अब इसके बाद हमें इंटीरियर एंगल को जब भी रेडियन में कन्वर्ट करना, तो ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180 करेंगे. नो, ये एंगल है हमारे पास. ठीक है, ये 2 पाई अपॉन 7. तो इफ वी सब्ट्रैक्ट दिस एंगल फ्रॉम पाई, सॉरी, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, इट इज इक्वल टू पाई माइनस 2 पाई अपॉन 7. 7 1 जा 7. दिस इज 7 पाई माइनस 2 पाई अपॉन 7. दिस इज इक्वल टू 5 पाई अपॉन 7 रेडियन. तो कभी भी अगर फ्रैक्शन है और या डेसिमल में डिग्रीज है तो उसके फ्रैक्शनल पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, पाई में से माइनस करते हैं, क्योंकि पाई भी क्या है, रेडियन है. तो 180 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, पाई. तो इट इज इक्वल टू पाई माइनस 2 पाई अपॉन 7. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 5 पाई अपॉन 7 रेडियन. मीन्स इंटीरियर एंगल इक्वल्स 128.57 डिग्री और 5 पाई अपॉन 7 रेडियन. और तो इस तरह से सेप्टागन के लिए कंप्लीट हो गया, जबकि यहाँ पर ये डिवाइड नहीं था, डेसिमल पॉइंट में था, और यहाँ पर हमने रेडियन कन्वर्जन इसका पाई अपॉन 180 फ्रैक्शनल पार्ट से कर लिया. इसको नहीं लेना है. ठीक उसी तरह से यहाँ भी रेडियन कन्वर्ट करने के लिए हम पॉइंट्स डेसिमल को नहीं लेंगे, सीधे सीधे पाई माइनस दिस पार्ट 2 पाई अपॉन 7 कर देंगे.
और ये सभी टर्म्स अपने को याद रखने हैं कि जैसे फ्रैक्शन में आ गया तो हमें पाई में से माइनस करना है, न कि डेसिमल पॉइंट को रेडियन में कन्वर्ट करना है। ओके, क्लियर हो गया होगा, तो चलते हैं आगे भी। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4 फॉर फोर्थ octagon. Octagon, it has 8 sides, that is n equal to 8. So exterior angle equal to 360 upon n, where n is number of sides. Exterior angle 360 upon n, where n is number of sides. So this is equal to 360 upon 8. 360 upon 8 is how much? 45. So 360 degree upon 8 equal to 45 degree. The exterior angle in degree is 45 degree for octagon. Now convert it into radian by multiplying pi upon 180. So it is equal to 45 into pi upon 180 radian. तो 45 4 जा 180, 45 से कट हो जाता है, 4 आएगा यहाँ पर, तो इट इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 रेडियन। ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, इन डिग्रीज 45 और पाई अपॉन 4 रेडियन, ये टू मेजर्स। नाउ सी इंटीरियर एंगल। Interior angle equals 180 minus 45 degree. So this is equal to 135 degree. Now 135 multiplied by pi upon 180 for radian conversion. So after simplification we get 3 pi upon 4. तो यहाँ देखो 45 3 जा 135 and 45 4 जा 180. ये 45 के टेबल से कट हो रहा है, या 5 के टेबल से भी कट कर सकते हो, 3 के टेबल से कट कर सकते हो। ओके, तो 135 पाई अपॉन 180 सिंप्लीफाई वी गेट 3 पाई अपॉन 4 रेडियन। ये हो गए कन्वर्जन। तो ये हमारे सभी 4 सब क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीटेड। फर्स्ट पेंटागन, देन हेक्सागन, सेप्टागन एंड ऑक्टागन। तो हमारे पास 5 साइडेड फिगर, 6 साइडेड फिगर, 7 साइडेड फिगर एंड 8 साइडेड फिगर, बट दीज आर रेगुलर पॉलीगन। ये ध्यान रखना है कि रेगुलर है तो ही ये फार्मूला अप्लीकेबल है, अदरवाइज ये फार्मूला अगर रेगुलर वर्ड यूज नहीं किया गया है तो उनके एंगल्स डिफरेंट हो जाएंगे, फिर इक्वल नहीं आते हैं, ये ध्यान रखना है। रेगुलर पॉलीगन, that is all the sides are same, all the sides are identical, all the sides are equal. okay, तो ये कंप्लीट हो गया और समझ में आ गया होगा, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 is very interesting question and very useful. Question 14. Find the angle between hour hand and minute hand in a clock at. अब यहाँ पर टोटल 6 सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 14th क्वेश्चन में अपने कितने हैं? टोटल 6 सब क्वेश्चंस आर देयर। तो यहाँ पर एक ही साथ सभी 6 सब क्वेश्चंस को न लिख करके एक एक क्वेश्चन को मैं ले रहा हूँ और 1 बाय 1 उनका सोल्यूशन भी देते जाऊंगा। देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड इन अ क्लॉक एट। सो इन अ क्लॉक एट व्हाट? फर्स्ट वन 10 past 11, 10 past 11, दैट इज 11:10 मीन्स जब भी क्लॉक में 11:10 होगा, टाइम 11:10, 11:10 हो गए, तो मिनट हैंड एंड आवर हैंड मतलब घंटे की सुई और मिनट की सुई में दोनों के बीच में कितना डिग्री एंगल बनेगा, ये अपना क्वेश्चन है कि व्हेन टाइम इज 11:10, टाइम इज एट 11:10, 11:10 पर आवर हैंड घंटे की सुई एंड मिनट हैंड मिनट की सुई में कितना डिग्री का एंगल होगा, दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल होगा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पहले हम लोग घड़ी को देखते हैं कि उसमें किस ढंग से दिखेगा। पहले घड़ी को देखिए कि ये इस घड़ी में 11:10 हो रहे हैं, राइट? 11:10, टाइम इन दिस वॉच 11:10। क्लियर? ये है आवर हैंड और ये है मिनट हैंड, ये क्लियर कर लेना है पहले।
तो ये आवर हैंड एंड मिनट हैंड ये दोनों में पहले डिफरेंसेस देखो कि मिनट हैंड देखो 11:10 मीन्स मिनट हैंड एग्जैक्टली 2 पर है, और जब ही 11:10 हुआ रहेगा तो आवर हैंड एग्जैक्टली 11 पर नहीं होगी, 11 और 12 के बीच में होगी, मतलब 11 से थोड़ा आगे निकल चुकी होगी। करेक्ट, क्योंकि अचानक से तो हो जाएगी नहीं भाग के 12 पर। जैसे जैसे ये 5 मिनट यहाँ आया होगा, फिर 10 मिनट, 15 मिनट, 20, जैसे जैसे मिनट हैंड आगे बढ़ेगी आवर हैंड 11 से 12 की तरफ थोड़ा थोड़ा मूव करेगी, रोटेट करेगी। राइट, ये चीज़ पहले समझना है। तो यहाँ ये चीज़ अगर समझ में आ गई तो हम आगे चलते हैं फिर। यस, आ गया समझ में? ओके। तो 11 देखो ये आवर हैंड है, राइट, दिस इज आवर हैंड, और ये है मिनट हैंड। तो जैसे ही इस घड़ी में 11:10 हुआ रहेगा तो ये आवर हैंड 11 से थोड़ा सा आगे निकल चुकी होगी। तो हमें एक तो ये पता लगाना है कि ये कितना आगे निकल चुकी है, मतलब कितना डिग्री आगे निकली होगी, और दूसरा चीज़ ये भी पता करना है कि 11 और 2 के बीच में कितना डिग्री टोटल एंगल होता है। तो देखो, सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं कि 11 से 12 30 डिग्री, 12 से 1 30 डिग्री, और 1 से 2 30 डिग्री। तो टोटल हमारे पास 30 प्लस 30 प्लस 30 ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो इसके लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे कि 10 पास्ट 11 दैट इज 11:10 टाइम एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड बिटवीन टू yes, now see once again, angle between hour hand and minute hand between 11 to 2। देखो 11 से 2 के बीच में कितना एंगल होगा, बिटवीन 11 टू 2। तो 11 से 2 के बीच हम पहले टोटल एंगल को फाइंड कर लेते हैं। तो बिटवीन 11 टू 2 30 प्लस 30 प्लस 30, जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया, इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड बिटवीन 11 टू 2 इज 90 डिग्री, राइट। क्योंकि देखो एक एक के बीच में 30 डिग्री का एंगल होता है टोटल, एक सर्कल है, और 360 का मेजरमेंट टोटल है। तो जैसे हम लोग 5 मिनट्स आगे जाएंगे 30 डिग्री मूव करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 पार्ट्स हैं, तो यहाँ पर हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो 11 से 2 के बीच टोटल एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि व्हेन मिनट हैंड रोटेट्स 10 मिनट आफ्टर 12 o'clock, then our hand rotates 10/2 degree, that is 5 डिग्री। ठीक है, ये कैसे हुआ, अब ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी। तो ये जैसे ही देखो आवर हैंड जो है जैसे रोटेट करती है, तो ये 12 आवर्स में 360 डिग्री एंगल मूव करती है। ठीक है, 12 आवर में 360, तो 1 आवर में 360 अपॉन 12, 1 आवर में 360 अपॉन 12 दैट इज 30 डिग्री, 30 डिग्री का मूवमेंट होता है। तो 1 आवर इक्वल टू 30 डिग्री, तो 1 आवर में मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट, तो 60 मिनट इक्वल टू 30 डिग्री, देयरफॉर 1 मिनट इक्वल टू 30 अपॉन 60 दैट इज हाफ डिग्री। तो इसीलिए ये जितना मिनट रोटेट करेगी उससे तो हाफ से इसमें मल्टीप्लाई करें या 2 से डिवाइड कर दें सिंपल में। तो व्हेन मिनट हैंड रोटेट्स 10 मिनट आफ्टर 12, मतलब ये 12 o'clock के बाद, ऐसा ये 10 मिनट में, तो ये उस ड्यूरेशन में, ये 10 मिनट में आवर हैंड 11 से कितना रोटेट की होगी, कितना डिग्री एंगल आगे बढ़ गई होगी वो देखना है। तो कितना डिग्री आगे बढ़ेगी, 10/2 डिग्री इक्वल टू 5 डिग्री। तो एक्चुअल एंगल बिटवीन 11 टू 2 मीन्स एक्चुअल एंगल एट 11:10, क्या लिखना चाहिए यहाँ पर, एक्चुअल एंगल एट 11:10 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री। क्योंकि देखो 11 से 2 के बीच 90 डिग्री है, और ये ऑलरेडी यहाँ से 5 डिग्री लगभग यहाँ तक रोटेट कर चुकी है, तो ये 5 डिग्री हमें माइनस करना पड़ेगा ना, तभी तो आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल आएगा। तो 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री इक्वल टू 85 डिग्री। ठीक है, तो एक्चुअल एंगल एट 11:10 between hour hand and minute hand is 85 डिग्री।
अब अगर इसे रेडियन में भी पूछा है तो मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180 कर सकते हो, और नहीं पूछा है तो कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, चलो तो ये हम एक्सप्लेनेशन वापस दे देते हैं, क्योंकि इसका क्या फार्मूला है, क्या रूल रेगुलेशंस क्या हैं। आई विल एक्सप्लेन, नाउ सी दिस वेरी केयरफुली। For explanation for the all questions in this main question means question number 14 के सभी सब क्वेश्चंस में क्या यूज किया गया और क्यों यूज किया गया उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देखो। फॉर आवर हैंड 12 आवर हैंड रोटेट्स इन 12 आवर 360 डिग्री, क्योंकि एक पूरा चक्कर लगाने में आवर हैंड 12 घंटे घूमती है, और वो 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, क्योंकि एक मेजरमेंट ऑफ अ सर्कल इन डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री ये लिया गया है। तो 12 आवर में 360 डिग्री रोटेशन हुआ, तो 1 आवर में कितना होगा भाई, डिवाइड कर दो 12 से, 360 अपॉन 12 इक्वल टू 30 डिग्री। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, देखो 1 आवर इक्वल टू दैट इज 60 मिनट, तो 60 मिनट इक्वल टू 30 डिग्री रोटेशन, 60 मिनट इक्वल टू 30 डिग्री रोटेशन, देयरफॉर 1 मिनट इक्वल टू 30 अपॉन 60 डिग्री रोटेशन। ये रोटेशन की बात है, ऐसा नहीं कि इसके इक्वल होता है इतना, ये रोटेशन में चल रहा है। तो 30 अपॉन 60 डिग्रीज इक्वल हाफ डिग्री, और ये हाफ डिग्री क्या है, 0.5 डिग्री। इसके लिए जैसे ही जितना मिनट हैंड रोटेट करती है तो हम लोग उसको 2 से डिवाइड करते हैं, ये रीजन है। ऐसा नहीं कि हमेशा 60 मिनट इक्वल टू 30 डिग्री होता है, नो, ये सिर्फ आवर हैंड के लिए, आवर हैंड के लिए रोटेशन में दिखाया गया कि 60 मिनट अगर आवर हैंड 1 घंटे या 60 मिनट रोटेट करती है तो 30 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। तो अगर वो 1 मिनट रोटेट करेगी तो कितना एंगल फॉर्म करेगी, 30 अपॉन 60 दैट इज हाफ डिग्री, और यू कैन से इट इज 0.5 डिग्री, या इसी 0.5 डिग्री को हम 30 मिनट भी बोल सकते हैं कि 1 मिनट में आवर हैंड सिर्फ 30 मिनट रोटेट करेगी, सॉरी 1 मिनट में हाफ डिग्री, जब उसको मिनट में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्वेश्चंस में एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, नाउ सी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द मिनट हैंड। तो मिनट हैंड का क्या है कि मिनट हैंड एक चक्कर देखो पूरा 60 मिनट रोटेट करती है, तो उसका 1 घंटे पूरा होता है, राइट। तो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, ये मिनट हैंड के लिए कि 60 मिनट में मिनट हैंड अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है, 1 घंटे घूम जाती है, तो 60 मिनट में ये 360 डिग्री का एंगल रोटेट करती है। तो 1 मिनट में 360 अपॉन 60 डिग्री रोटेशन होगा, दैट इज फॉर मिनट हैंड 1 मिनट के लिए ये 6 डिग्री रोटेट करती है। मिनट हैंड 1 मिनट में कितना एंगल फॉर्म करती है, 6 डिग्री। तो 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री फॉर मिनट हैंड ओनली, ये ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि मिनट हैंड रोटेट्स इन 1 मिनट 6 डिग्री एंड आवर हैंड रोटेट्स इन 1 मिनट हाफ डिग्री। ये ध्यान देना कि आवर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री रोटेट करती है और मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री रोटेट करती है। क्लियर। तो इसके लिए हम लोग ये जो कैलकुलेशन करेंगे अभी टाइमिंग का, उसमें जितना मिनट हैंड मूव की रहेगी उसको 2 से डिवाइड करोगे तो आवर हैंड के लिए हो जाएगा। चले आगे। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन 20 past 7 दैट इज 7:20 ये टाइम है। तो सबसे पहले एक वॉच बना लेनी है और यहाँ पर 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 से चालू कर देना है। अब यहाँ पर है 7:20 का टाइम दिखाना है, तो आवर हैंड ये 7 और 8 के बीच में होगी, राइट, 7 से थोड़ा सा आगे, और मिनट हैंड एग्जैक्टली एट 4, दिस इज मिनट हैंड, दिस इज आवर हैंड। तो देखते हैं एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 7:20, ये हमें फाइंड करना है। एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 7:20 is what? Now see the solution. That is between 4 and 7. एंगल यहाँ पर क्या लिखोगे, एंगल बिटवीन 4 and 7, ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किया है, लेकिन एक्सप्लेन कर देता हूँ तो उसको फिर से लिख सकते हो। एंगल बिटवीन 4 and 7 is what? अब यहाँ से देखो 30 + 30 + 30, अभी 7 के आगे नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ 7 तक देखना है।
कि 30, 30 एंड 30, ये कितना हो गया 90 डिग्री। तो एंगल बिटवीन 4 एंड 7 इज 90 डिग्री। ठीक है, देखो एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 7:20 दैट इज बिटवीन 4 एंड 7, तो एंगल बिटवीन 4 एंड 7 इज व्हाट 90 डिग्री। एंगल बिटवीन 4 एंड 7 इज 90, ये हो गया 90 डिग्री। अब इसके बाद ये 90 तो फिक्स है, लेकिन 7 से थोड़ा आगे आवर हैंड थोड़ा सा आगे रोटेट कर चुकी है, कितना रोटेट की है वो हमें पता लगाना है। तो अब इसके लिए हमें 12 पर जाना होगा। 12 से मिनट हैंड कितना रोटेट की 20 मिनट। देखो आफ्टर 12 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 कितने हो गए टोटल 5 4 जा 20। 12 से 4 तक मिनट हैंड 20 मिनट मूव कर चुकी है। तो 20 मिनट में ये अगर 20 मिनट मूव करती है तो एंगल अब यहाँ पर इवन मिनट हैंड रोटेट्स 20 मिनट देन आवर हैंड रोटेट्स 20/2, इसी में डिवाइड कर देते हैं। तो 20/2 डिग्री इक्वल टू 10 डिग्री, मतलब जितना रोटेट की रहेगी उसी को डिवाइड कर दो, सबसे इजीएस्ट मेथड है ये। 20/2 10 डिग्री। अब देखो ये 30 30 30 90 हमने पहले लिया था और 7 के बाद ये 10 डिग्री मूव कर चुके हैं। कितना मूव की है 10 डिग्री। तो एक्चुअल एंगल एट 720, एक्चुअल एंगल एट 720 इज 90 डिग्री प्लस 10 डिग्री, क्योंकि 7 से आगे है। अगर ये 7 के पहले होती बिफोर तो माइनस करोगे, और 7 के बाद है मतलब आफ्टर 7 हो गई है आवर हैंड, तो 90 प्लस 10 इक्वल टू 100 डिग्री। तो एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड, एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 720 इज 100 डिग्री। 30 30 30 और ये 10 डिग्री आगे मूव कर चुकी है आवर हैंड, इसके लिए हम 10 डिग्री इसमें ऐड करते हैं। और वो 10 डिग्री कैसे आया मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया इजी मेथड में, उसको देख सकते हो। 90 प्लस 10 इक्वल टू 100 डिग्री। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। अब इसका जो थर्ड पार्ट है ये दिया है 35 past 1, 35 past 1 दैट इज 1:35। टाइम कितना हो रहा है घड़ी में 1:35 का। तो 1:35 के लिए हमें एक दूसरी वॉच बनाते हैं। यहाँ पर ये वॉच है यहाँ पर, और इस वॉच में 1:35 का टाइम हो रहा है। इसका मीनिंग क्या है, दिस इज आवर हैंड, दिस इज आवर हैंड। तो आवर हैंड बिटवीन 1 एंड 2 है और मिनट हैंड एग्जैक्टली एट 7 है। तो 35 past 1 दैट इज 1:35। तो एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 1:35 इज व्हाट। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एंगल बिटवीन 1 एंड 7 क्या है। एंगल बिटवीन 1 एंड 7, क्योंकि अपने को 1:35 लेना है। तो इस समय आवर हैंड है अपनी 1 और 2 के बीच में, तो 1 से लेते हैं, और मिनट हैंड है 7 पर। इसके लिए हमें 1 से 7 तक एंगल मेजर करना है, फ्रॉम 1 to 7। So we see that from 1 to 7, 30, 30, 60, 90, 120, 150, 180. तो एंगल बिटवीन 1 एंड 7 इज 180 डिग्री। टाइम जो अपना घड़ी पर लिखा हुआ है 1 से 7 के बीच में कितना एंगल हो गया टोटल 180 डिग्री का। तो ये 180 डिग्री मूवमेंट है। उस समय जैसे मिनट हैंड 12 से अपनी स्टार्टिंग अपनी जर्नी स्टार्ट करती है ऑलवेज, राइट। 12 से स्टार्ट करते करते जब वो 7 पर पहुंची मिनट हैंड, तो आवर हैंड 1 पर तो रहेगी नहीं एग्जैक्टली, क्योंकि 35 मिनट्स पास हो चुके हैं। तो 1 और 2 के बीच में मतलब ये मिडल से आगे निकल चुकी होगी। तो आवर हैंड 1 से कितना डिग्री आगे निकली होगी वो हमें पता लगाना है। तो सबसे इजी मेथड यही है कि एंगल बिटवीन 1 एंड 7 इज 180 डिग्री। ये तो कंफर्म ना, 30 30 36 टाइम ऐड कर लियो 130। तो व्हेन मिनट हैंड रोटेट्स 35 मिनट, ये मिनट का सिंबल है 35 मिनट, देन आवर हैंड रोटेट्स 35/2, 35 इंटू हाफ बोलो या 35/2 डिग्री इक्वल टू 17.5 डिग्री। मीन्स ये जो यहाँ से यहाँ तक है अगर एग्जैक्टली मिडल में होती तो 15 डिग्री, राइट। लेकिन वो 35 मिनट हो चुका है थोड़ा आगे, तो 17.5 डिग्री आगे निकल चुकी है। कितना 17.5 यहाँ पर होगी लगभग, ये आवर हैंड, ठीक है, ये लगभग यहाँ पर होगी। तो 17.5 डिग्री आगे आ गई है। तो जब ये टाइम 1:35 होगा तो 1 से 7 के बीच में 180 डिग्री, और 1 से कितना डिग्री आगे निकली है आवर हैंड 17.5,
क्योंकि ये 1 के बाद मतलब आफ्टर 1 हो चुकी है, इसके लिए इसमें माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? माइनस। देयरफॉर एक्चुअल एंगल एट 135 इज, एक्चुअल एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड, यहाँ मैं लिख चुका हूँ, देख लो। एक्चुअल एंगल, द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 135, तो एक्चुअल एंगल एट 135 इज 180 माइनस, ये कितना आया? 17.5 डिग्री। 17.5 डिग्री सब्ट्रैक्टेड, वी गेट 162.5 डिग्री। यहाँ पर 162.5 डिग्री मिल गया। या इसी को अब ये 0.5 डिग्री जो है ये 30 मिनट का वैल्यू है, ठीक है, जो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस में कर चुके हैं। तो चाहे तो 162.5 डिग्री लिखो या 162 डिग्री 30 मिनट, मतलब आधा डिग्री रोटेशन में 162 डिग्री एंड 30 मिनट, या 162.5 डिग्री, ये भी लिख सकते हैं। जो मैंने ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया है आवर हैंड के लिए, रोटेशन का एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है, वो स्टूडेंट टाइम टू टाइम रिपीट करेंगे, देखेंगे, तो क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये सबसे इजी सोल्यूशन फॉर वॉच कैलकुलेशन, एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड के लिए सबसे इजी कैलकुलेशन मैंने दिया। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो 162 डिग्री 30 मिनट हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। फॉर फोर्थ पार्ट, फोर्थ वन, quarter to 6 that is 5:45। टाइम कितना होना चाहिए यहाँ पर? 5:45। तो 6 में 15 मिनट अभी कम है। तो सिंस एंगल बिटवीन 5 एंड 9, क्योंकि 5:45 की पहले पोजीशन देखते हैं। आवर हैंड 5 एंड 6 के बीच होगी, बिटवीन 5 एंड 6, नॉट एग्जैक्टली इन द मिडल, इन बिटवीन 5 एंड 6, कहीं भी हो सकती है, इधर या इधर। और मिनट हैंड श्योर 9 पर रहेगी, करेक्ट। तो ये 5:45 का टाइम बताएगी। तो 5:45 ये एग्जैक्टली मिनट हैंड है 9 पर, और ये है आवर हैंड बिटवीन 5 एंड 6। तो एंगल बिटवीन 5 एंड 9, देखो 5 से लेकर के हम लोग 9 तक का एंगल टोटल काउंट कर लेते हैं पहले। फ्रॉम 5 to 9 हाउ मच एंगल इन डिग्रीज? 30 + 30 60 + 30 90 + 30 120। तो सबसे पहले लिखते हैं एंगल बिटवीन 5 एंड 9 इज 120 डिग्री। आफ्टर दैट व्हेन मिनट हैंड रोटेट्स 45 मिनट, क्यों 45 मिनट? हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं ना मिनट हैंड की, 12 से। तो देखो 12 से 1 से चालू होते 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 पर आके स्टॉप हो गई है मिनट हैंड यहाँ पर। और इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये हमें फाइंड करना है। तो 9 पर आ गई मिनट हैंड, तो कितना रोटेशन हुआ टाइम में? 45 मिनट का। तो व्हेन मिनट हैंड रोटेट्स 45 मिनट, then angle made by our hand is what? 45/2 डिग्री इक्वल टू 22.5 डिग्री। ठीक है, सेम वही मेथड, हाफ यहाँ पर कर देंगे। तो 22.5 डिग्री, या 45 इंटू हाफ बोलें या 45/2, सेम मीनिंग, 22.5 डिग्री। तो ये 22.5 डिग्री 5 आफ्टर, 5 के बाद हो चुका है रोटेशन किसका? आवर हैंड का। तो एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड 120 से थोड़ा लेस होगा। कितना लेस होगा? जितना यहाँ पर ये आवर हैंड आफ्टर 5 रोटेट कर गई होगी। तो आफ्टर 5 आवर हैंड कितना रोटेट कर चुकी है? 22.5 डिग्री। Therefore, actual angle at 5:45 in between hour hand and minute hand is 120 degree minus 22.5 degree. It is equal to 97.5 degree or 97 degree 30 minute. Same calculation, easy calculation दिया गया है। Okay. तो होप सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे होंगे इस एक्सप्लेनेशन को, जो कि बहुत ही इजी कैलकुलेशन और इजी ट्रिक यहाँ पर दिया गया है। तो अभी तक जो न्यू स्टूडेंट चैनल पर ज्वाइन हुए हैं और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
So please subscribe the channel first and then continue. See question number 5. At 220 means we have to find the angle between hour hand and minute hand at 220. तो सबसे पहले आते हैं वॉच की कंडीशन पर. At 220 hour hand between 2 and 3 and minute hand at 4, exactly at 4. तो एंगल बिटवीन, अब यहाँ पर हमें 2 and 4 के बीच में एंगल को देखना है, 2 and 4. तो एंगल बिटवीन 2 and 4 इज 60 डिग्री. वाई? 30 plus 30. देखो एंगल बिटवीन 2 and 4, बस यहाँ से यहाँ तक कितना है, 60 डिग्री. तो एंगल बिटवीन एक एक, जैसे जितने 5 मिनट्स आगे चलते जाएंगे उतना 30 डिग्री आगे बढ़ते हैं. तो 2 and 4, बिटवीन 2 and 4 में कितना हो गया, फ्रॉम 2 to 4 60 डिग्री. तो एंगल बिटवीन 2 and 4 इज 60. सबसे पहले ये मेजरमेंट नोट कर लेते हैं. व्हेन मिनट हैंड रोटेट्स 20 मिनट फ्रॉम 12. अब देखो मिनट हैंड यहाँ से स्टार्ट की अपनी जर्नी और 4 पर आके स्टॉप हुई है अभी. तो 4 पर कितना मिनट हो गया, 20 मिनट. तो व्हेन मिनट हैंड रोटेट्स 20 मिनट, then angle made by R hand is 20/2, that is 10 डिग्री. जितना यहाँ पर रोटेट करेगी उतना वहाँ पर एंगल बढ़ता जाएगा. ये 20/2 that is 10 डिग्री. तो 10 डिग्री रोटेशन फ्रॉम फॉर R hand फ्रॉम 2 to 3, मतलब बिटवीन 2 and 3. तो बिटवीन 2 से थोड़ा आगे कितना रोटेट कर चुके हैं, 10 डिग्री. तो अगर हमें एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड फाइंड आउट करना है तो ऑलरेडी 2 से थोड़ा सा आगे निकल चुकी है, राइट. और फ्रॉम 2 to 4 एंगल है 60. तो क्या करना होगा यहाँ पर, माइनस. तो देयरफॉर एक्चुअल एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड एट 220 इज 60 डिग्री माइनस 10 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री. ये एंगल हमें मिल गया यहाँ पर. तो इस तरह से एट 220 जो क्वेश्चन में दिया है, एट 220 मीन्स फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 220. तो 220 का ये कंडीशन, बिटवीन 2 to 4 60 डिग्री एंड आवर हैंड रोटेट्स इन 20 मिनट 10 डिग्री आफ्टर 2. और हमें 2 to 4 के बीच में एंगल कितना मिला हुआ है, 60. तो ये जो 10 डिग्री आवर हैंड आगे बढ़ चुकी है वो माइनस कर देते हैं. तो वी गेट एक्चुअल एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 220 is 60 degree minus 10 degree equal to 50 degree. Now see its sixth question, 14th sub question 6. At 10:10, तो 10 बजकर 10 मिनट, at 10:10 first we confirm the watch condition. Hour hand at 10 and minute hand at 2. Hour hand at 10 and minute hand at 2. Since angle between 10 and 2 is 120 degree. How? See this. 30 plus 30 60 plus 30 90 plus 30 120. Means from 10 to 2 हमें ये देखना है कि टोटल एंगल क्या है बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड. तो 10 to 2 आवर हैंड एंड मिनट हैंड के बीच में एंगल होता है कितना, 120 डिग्री. फ्रॉम 10 to 2 ये 120 डिग्री हो गया. अब व्हेन मिनट हैंड रोटेट्स 10 मिनट, देखो फ्रॉम 12 to 2 ये 10 मिनट रोटेट कर चुकी है. तो देन आर हैंड रोटेट 10/2 डिग्री इक्वल टू 5 डिग्री. तो एंगल बिटवीन 10 and 2 is 120 डिग्री. व्हेन मिनट हैंड रोटेट्स 10 मिनट, देन आवर हैंड रोटेट्स 10/2 डिग्री, that is 5 degree. Our hand rotates 10/2, that is 5 degree. Therefore, actual angle made by our hand and minute hand at 10:10 is 120 degree. Means total angle between 10 to 2. The total angle from 10 to 2, 120 degree minus angle made by our hand after 10. मतलब 10 o'clock के बाद 10 के आगे कितना रोटेट की है, 5 डिग्री का रोटेशन है, 5 डिग्री, दिस इज 5 डिग्री. तो 120 minus 5 डिग्री, that is 115 डिग्री. तो actual angle made by our hand and minute hand
at tan 10 is 120 degree minus 5 degree equal to 115 degree। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का 6th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 1.1 फॉर द चैप्टर एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, दैट इज चैप्टर नंबर 1, full exercise 1.1 fully completed. All the questions are given in easy and tricky methods. In case if anyone student has doubt in these questions or in this exercise, so you can leave your comment in the comment box and write down details in exercise number, question number and sub question number also. So I'll explain it in the next lecture or in any other lecture. If you will follow all lectures, all videos, if you are regular listener, regular follower of my channel, so you will get your doubts in the next video or next to next video. तो उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट को लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग सभी फार्मूले, प्रैक्टिस एंड एक्सप्लेनेशन फॉर आवर हैंड एंड मिनट हैंड कंप्लीट करोगे और ये क्वेश्चंस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मेनली आरआरबी, एनटीए, कैट एग्जाम और अदर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जेईई एटसेट्रा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आल्सो। So you should refer explanation for hour hand, minute hand and follow all these questions also and take another question of the similar type and practice time to time. Then you will get exact calculation, exact answer for all the questions. तो उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट को लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।